نیوز اینکر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کی اموات سے پناہ مانگی۔ نمبر 1 اچانک اور ناگہانی موت، نمبر 2 سانپ کے ڈسنے سے موت، نمبر 3 درندے کی چیر پھاڑ سے موت، نمبر 4 پانی میں ڈوب جانے سے موت، نمبر 5 جل جانے سے موت، نمبر 6 کسی چیز پر گرنے یا اس پر کسی چیز کے گر جانے سے موت، نمبر 7 میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے موت۔ احمد بن حنبل 6594۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھوبھارتی درخواستوں کو اولین ترجیح دینے اور اس سے فوری حل کرنے ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے عہدیداران کو دی ہدایت، اور وبائی امراض پر قابو پانے احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور ہر رہائشی علاقے میں فوگنگ اور اسپرے کرنے کی دی تجویز۔ ضلع کلکٹر نے رینجل منڈل کا کیا بڑے پیمانے پر معائنہ۔ ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے رینجل منڈل کا اچانک معائنہ کیا۔ کلکٹر نے ویرنا گٹا میں ضلع پریشد ہائی اسکول، پرائمری اسکول اور آنگن واڑی سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے معائنہ کیا کہ آیا اسکولوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی حاضری چہرے کی شناخت کے نظام کے ذریعے لی جا رہی یا نہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا یوڈیس میں تمام طلبہ کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی۔ کلکٹر نے کچن، بیت الخلاء اور کلاس رومز کا معائنہ کیا۔ اسکول کے احاطے میں غیر استعمال شدہ کمروں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ باورچی خانے اور اسکول کے احاطے کو صاف ستھرا رکھا جائے اور طلبہ کو مینو کے مطابق مڈ ڈے میل فراہم کیا جائے۔ ایچ ایم کو ہدایت دی کہ وہ لڑکوں کے لیے بیت الخلاء اور دیگر ضروری انفراسٹرکچر کے لیے امادش اسکول کمیٹیوں کے ذریعے تجاویز بھیجے۔ بعد ازاں کلکٹر نے رینجل منڈل مستقر میں پرائمری ہیلتھ سینٹر، ایم پی ڈی او، تحصیلدار دفاتر، آنگن واڑی سینٹر اور پرائمری اسکول کا معائنہ کیا۔ پی ایچ سی میں کوئی میڈیکل آفیسر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان سے دریافت کیا، حاضری رجسٹر چیک کیا اور عملے کی حاضری چیک کی۔ کلکٹر نے خود ڈیوٹی پر نہ آنے والوں کے حاضری رجسٹر میں غیر حاضری کا نشان لگایا اور غیر حاضر ڈاکٹروں اور عملے کی تفصیلات ڈی ایم ایچ او کو بھیجی۔ بعد میں کلکٹر نے بودھن سب کلکٹر وکاس مہاتو کے ہمراہ تحصیلدار کے دفتر کا دورہ کیا اور ہر گاؤں کے ریونیو افسران اور عملے کے ساتھ بھوبھارتی ریونیو کانفرنسوں میں موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ ماڈیولز میں کتنی درخواستوں کو حل کیا، کتنی زیر التوا ہے، کتنے لوگوں کو نوٹس دیے گئے، کیا فیلڈ لیول کی تصدیق کا عمل مکمل ہوا، وہ دیگر کی تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ کلکٹر نے حکم دیا کہ بھوبھارتی درخواستوں کو اولین ترجیح دی جائے، درخواستوں کے حل میں کوئی تاخیر نہ ہو اور درخواستوں کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے کر انہیں جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام درخواستوں کو مقررہ وقت کے اندر حل کیا جائے۔ اس موقع پر کلکٹر کے ہمراہ مقامی عہدیداران موجود تھے۔ پڑگل گاؤں میں بجلی کی سپلائی میں مسئلے کی وجہ مکئی کی فصل سوکھ رہی، بجلی کی فراہمی میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے اور کسانوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے بالکنڈہ ایم ایل اے ویمولا پرشانت ریڈی نے این پی ڈی سی ایل ایس سی کو دیا حکم۔ ویلپور منڈل کے پڑگل گاؤں میں بجلی کی سپلائی میں مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے فصلیں سوکھ رہی۔ جب کسانوں نے یہ مسئلہ ایم ایل اے کے علم میں لایا تو انہوں نے فوراً جواب دیا اور ٹی جی این پی ڈی سی ایل ایس سی سے فون پر بات کی اور اس مسئلے کو جلد حل کرنے کا اظہار کیا۔ کسانوں نے شکایت کی کہ گاؤں میں 3 روز پہلے بجلی کی سپلائی نہیں تھی اور پچھلے 2 دنوں سے ایک طرف 6 گھنٹے اور دوسری طرف 6 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے کسانوں نے ایم ایل اے کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے مکئی کی فصل سوکھنے کا خطرہ ہے۔ سب اسٹیشن پر جا کر اہلکاروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کم وولٹیج کا مسئلہ ہے اور اگر 3 کیپیسیٹر سیل اور 4 بیٹریاں ہو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس موقع پر ایم ایل اے نے
एससी को फौरी तौर पर मटेरियल सप्लाई करने और मौजूदा मसले को जल्द हल करने का हुक्म दिया ताकि किसानों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। రెడ్డి ఎస్సీ గారు ఇప్పుడు నా కాన్స్టిట్యున్సీలో వేల్పూర్ మండలము పడిగల్ విలేజ్ ఒకసారి రాసుకోరా. సార్ పడిగల్ విలేజ్ సబ్ స్టేషన్ కూడా అదే. అవును అయితే 3 days నుంచి బాగా ఇబ్బంది అవుతుందట. 3 days క్రితం 3 రోజుల క్రితం మొత్తంకే లేదట పవరు. నిన్న నుంచి రెండు భాగాలు చేసి 6 గంటలు ఒక్కొక్క సైడు 6 గంటలు ఒక సైడ్ ఇస్తున్నారట. అచ్చా అయితే మక్కలు బాగా ఇప్పుడు పారకం బాగా అవసరం. మొత్తం ఊరంతా మక్కలు ఉంటాయి. అట్లా 6 గంటలు లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎండిపోతాయి మక్కలు. అవునా సార్ ఇవాళ కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది. ఒకసారి ఇమీడియట్ చెక్ చేయించి అది సెట్ చేయరా. ఏంటంటే వాళ్ళు సబ్ స్టేషన్లో అడిగితే లో వోల్టేజ్ అని అంటున్నారట. లో వోల్టేజ్ కి 10 సరే ఒక్కసారి ఇమీడియట్ గా సెట్ చేయండి పాపం, లేకపోతే మక్కలు ఎండిపోతాయి. ఎస్సీ గారు ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ నాకు ఏ విషయం చెప్తారా? చెప్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం. అయితే మా అక్కడ సొసైటీ చైర్మన్ ఉంటాడు హనుమంత్ రెడ్డి గారు అని, వాళ్ళు రైతులు కొంతమంది వెళ్ళినారట. ఆ సబ్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఆయన చెప్తున్నాడు కెపాసిటర్ సెల్స్ ఒక 3 కావాలన్నట, ఓకే సార్ బ్యాటరీస్ ఒక 4 అట. రైట్ ఆ మెటీరియల్ వస్తే అది మంచిగా అయిపోతుందట. ఓకే సార్ కొద్దిగా మెటీరియల్ ఏర్పాటు చేయరా దయచేసి, తొందరగా కొద్దిగా పంపిస్తాను సార్ పంపిస్తాను. తొందరగా ఏర్పాటు చేయండి. థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం. रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही फलाई स्कीमों से मुतासिर होकर सिरकुंडा मंडल के कोंडापुर गांव के बीआरएस और बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में ली शमूलियत। पार्टी खंडवा डालते हुए देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कायदीन का पार्टी में किया इस्तकबाल। निजामाबाद रूरल कैंप ऑफिस में डीसीसी जनरल सेक्रेटरी वी भास्कर रेड्डी की क़ियादत में सिरकुंडा मंडल के कोंडापुर गांव से बड़ी तादाद में बीआरएस और बीजेपी पार्टी कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पार्टी खंडवा डालते हुए कायदीन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाई स्कीमात से अवाम को वाकिफ कराया जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, मुफ्त 200 यूनिट बिजली, बिलासूद खर्च, किसानों की यकीन दहानी और कर्ज माफ़ी जैसी फलाई स्कीमों के बारे में गांव में सभी को आगाह किया जाए और कहा कि गरीबों के ख्वाब, गरीबों के लिए मुफ्त राशन कार्ड और उम्दा चावल जैसी फलाई स्कीमों को मुतारिफ कराने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी के कारकुनान कांग्रेस पार्टी के जरिए चलाई जा रही फलाई स्कीमों से मुतवज्जा होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी गांव ब्रांच सदर एन बोचन्ना, कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर श्रीधर किशोर दीगर भी मौजूद थे। प्रजवानी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान से 143 शिकायत मौसूल। मसाइल को फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकदा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान 143 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कारोलियन चिंगदियान मावी, डीआरडीओ सायागौड़, डीपीओ श्रीनिवास और निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी को अपनी दरख्वास्तें पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़ौक्तन शिकायत का जायजा लें और उन्हें ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अवाम के लिए जारी किए जाने वाले नए राशन कार्ड के लिए निजामाबाद साउथ में अभी तक करीब 6000 दरख्वास्तें दाखिल की गई। इसी तरह राशन कार्ड में नामों के इंदराज के लिए तकरीबन 16000 दरख्वास्तें हासिल हुई और मंजूरी के लिए मुतल्लिका महकमे को दरख्वास्तें भेज दी गई और मंजूरी का काम जारी है। राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख हुकूमत की जानिब से मुकर्रर नहीं की गई। अवाम अफवाह पर ध्यान ना दें, अफवाह के चलते मी सेवा सेंटर के चक्कर ना लगाएं।
दरख्वास्तें ली जा रही और हुकूमत की जानिब से हिदायत आने के बाद आखिरी तारीख का ऐलान किया जाएगा। अभी हुकूमत की जानिब से आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई और नए राशन कार्ड के लिए अवाम बराह रास्त दरख्वास्त दाखिल करें, एजेंटों को रकम देने से भी गुरेज करें। निजामाबाद साउथ तहसीलदार बाला राजू का बयान। अपना निजामाबाद साउथ मंडल में अभी तक जो तेलंगाना गवर्नमेंट नया रेशन कार्ड जारी करने प्रोसेस में अपना साउथ में अभी तक 5798 नया रेशन कार्ड्स अप्रूव कर वेस्ते DSO ऑफिस को हम प्रपोजल्स भेज दिए। एंड मेंबर एडिशन बोले तो एक फैमिली में नया पैदा हुए सो बच्चों का, नहीं तो बहुओं का, नहीं तो किसी का आदमियों का नाम चढ़ाना बोले तो वो मेंबर एडिशन का वास्ते भी अपने साउथ मंडल में कम से कम 16,698 एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी DSO ऑफिस को प्रपोजल्स भेज दिए। और एक बात क्या है आप लोगों से हम बोलना चाहते क्या है कि अभी तक ये रेशन कार्ड का एंड डेट बोले तो कट ऑफ डेट कुछ भी नहीं है। बाहर ये डेट को क्लोज हो रहा, वो डेट को क्लोज हो रहा बोल के बहुत लोग हम लोगों को पूछ रहे हैं, मगर अभी तक कुछ भी कट ऑफ डेट नहीं है। और कोई तो भी एप्लीकेशंस नहीं करने वाले भी आप जो मीसो को जाके आपका एप्लीकेशन दरखास्त करके आपका एप्लीकेशन तहसील ऑफिस में सबमिट करने के वास्ते कोशिश करिए। थैंक यू। गुज़िश्ता 10 सालों से राशन कार्ड की सहूलत से महरूम अवाम मुस्तहिक़ीन को नए राशन कार्ड्स की मंजूरी। कांग्रेस हुकूमत का गरीब अवाम को अनमोल तोहफ़ा, नाकाबिले फरामोश। कांग्रेस हुकूमत का कारनामा, साबिक़ सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान का बयान। नए राशन कार्ड्स की मंजूरी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और साबिक़ा रियासती वज़ीर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर। मंजूर शुदा राशन कार्ड की अवाम में मुजाहिद खान के हाथों तकसीम। रियासत की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के लिए राशन कार्ड्स की मंजूरी अमल में लाएगी और ये अमल गुज़िश्ता चंद माह से जारी है। शहर के खुजा कॉलोनी, इस्लामपुरा और हबीब नगर इलाकों में तकरीबन 400 से ज़्यादा नए राशन कार्ड मंजूर किए गए। आज नए मंजूर शुदा राशन कार्ड की मुस्तहिक़ीन में साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान के हाथों तकसीम अमल में आई, जिस पर गरीब अवाम ने राशन कार्ड की मंजूरी पर हुकूमत और कायदीन और साबिक़ा कॉरपोरेटर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे खान की रहनुमाई राशन कार्ड की मंजूरी में मिली। इस मौके पर बात करते हुए साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान ने बताया कि गरीब मुस्तहिक़ अवाम जो राशन कार्ड की अहल थी, गुज़िश्ता 10 सालों से राशन कार्ड की अदम इजराई की वजह हुकूमत की जानिब से मिलने वाली सहूलतों से महरूम थी। कांग्रेस हुकूमत ने मुस्तहिक़ अवाम में राशन कार्ड मंजूर करते हुए गरीब अवाम को कीमती तोहफा दिया और ये कांग्रेस हुकूमत का मिसाली कारनामा है। उन्होंने बताया कि इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए गए थे, हुकूमत उन्हें पूरा करते हुए अवाम को सहूलतें फ्राहम कर रही। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और सीनियर साबिक़ा रियासती वज़ीर व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुजाहिद खान के हमरा फैसल नांदेड़ भी मौजूद थे। बहुत खुशी का दिन है। 10 साल के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ये डिसाइड करे हैं कि 10 साल के बाद तेलंगाना की आवाम को वाइट राशन कार्ड दिया जाए, इनको सहूलत पहुंचाया जाए, पारिक चावल और ये जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, ये बहुत खुशी की बात है। आवाम बहुत खुश है और हम शुक्रिया अदा करते हैं तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट का। जय कांग्रेस। 10 साल के इंतज़ार के बाद CM रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज राशन कार्ड मिला है, और शब्बीर अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए डी वार्मिंग डे प्रोग्राम के हवाले से जिला भर के तमाम म्यूनसिपल टाउन्स और देहातों में वसी मुहिम चलाने जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत और कहा कि अल्बेंडाजोल गोलियां बच्चों को खून की कमी, वजन में कमी
और दिगर अमराज से बचाने में मुआविन साबित होगा। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि पैदाइश से 19 साल की उम्र के हर फर्द को कीड़े मार गोलियां फराहम की जाए। पीर को कलेक्ट्रेट मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में डी वार्मिंग डे प्रोग्राम के सिलसिले में जिले टास्क फोर्स का इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों के तलबा, मदारिस के बच्चों, आंगनवाड़ी मराकिज और स्कूल से बाहर बच्चों को कीड़े मार दवा के लिए अल्बेंडाजोल की गोलियां फ्राहम की जाए। हर स्कूल और कॉलेज में एक नोडल अफसर की तकर्रुरी की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि ये गोली दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चों को दी। अल्बेंडाजोल गोलियां बच्चों को खून की कमी, वजन में कमी और दीगर बीमारियों से बचाने में मुआविन है। उन्होंने कहा कि ये गोली लेने से खून की कमी और दीगर सेहत के मसाइल से बचा जा सकेगा। उन्होंने हुक्म दिया कि जिला भर के तमाम म्यूनिसिपल टाउन्स और देहातों में डी वार्मिंग डे प्रोग्राम के हवाले से वसी मुहिम चलाई जाए और अवाम में बेदारी पैदा की जाए। तजवीज़ दी कि ग्राम पंचायतों में माइक्रोफोन के जरिए और म्यूनिसिपल टाउन्स में कचरा उठाने वाली गाड़ियों में ऐलानात के जरिए तशहीर की जाए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि इस माह की 9 और 11 तारीख को 2 दिन लाजमी तशहीरी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएं। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों और कॉलेजों के नोटिस बोर्ड्स और ब्लैक बोर्ड्स पर डी वार्मिंग डे का प्रोग्राम तहरीर किया जाए और कहा कि स्कूलों में आगाही पैदा की जाए ताकि बच्चे खाना खाने से कबल अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। उन्होंने ये भी कहा कि डी वार्मिंग डे प्रोग्राम को चाइल्ड केयर सेंटर्स, रेस्क्यू होम्स और यतीम खानों में लागू किया जाए। तालीम, तिब्बी और खवातीन व अतफाल के महकमे के साथ साथ मेपमा, IKP, म्यूनिसिपल अमला, IMA के नुमाइंदे, SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद से मुतल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों को इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुतल्लिक़ा इदारों के मुताबिक मंडल सतह पर तैयारी के इजलास मुनक़िद करने के इक़दामात किए जाएँ। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर तालिब इल्म को इस माह की 11 तारीख को अल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाए और अगर कोई छूट जाए तो उसकी निशानदेही करके इस माह की 18 तारीख को कीड़े मार दवा फ्राहम की जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि ऐसे तालीमी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए जहाँ अब तक डी वार्मिंग डे प्रोग्राम पर अमल नहीं किया गया। DMHO डॉक्टर राजश्री ने कहा कि इस माह की 11 तारीख को डी वार्मिंग डे का इनेकाद किया जाएगा और इसके लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला भर में 1 से 19 साल की उम्र के 4,05,443 अफराद को गोलियां देने का हदफ रखा। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर किसी को गोलियां खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं और इमरजेंसी की सूरत में करीबी अस्पताल या PHC ले जाए। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में पहले ही तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा चुके हैं और नोडल अफसरों की निशानदेही की। इस मौके पर कलेक्टर ने डी वार्मिंग डे के पोस्टरों की रस्मी इजराई अमल में लाई। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अंकित, DPO श्रीनिवास राव, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अशोक और दीगर भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत BC बिल को पार्लियामेंट में पास करे। इस माह की 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का इनेकाद। कायदीन इस धरने में शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। TPCC तर्जुमान वेणुगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर के प्रजा निलयम में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मीटिंग में TPCC सरकारी तर्जुमान वेणुगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ BC को 42% रिजर्वेशन, तालीम और सरकारी शोबों में नौकरियां फ्राहम करने के लिए काम कर रही, जैसा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वादा किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बिल को असेंबली में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद TRS लीडर KCR ने कहा कि इस माह की 8 तारीख को करीमनगर में BC ग्रजना प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन जिन्होंने कभी भी BC की तरक्की के लिए बात नहीं की, वो ग्रजना के नाम पर BC के करीब जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन तेलंगाना में ऐसे BC नहीं जहां उन पर भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी BC को गुमराह कर रहे और ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक असिस्टेंट है।
और केटीआर से पूछा कि क्या उन्हें अब बीसी की याद आई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और जो भी बीसी लीडर होगा वो इस जहाज में डूब जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में बीसी की फलाह व बहबूद के लिए इस तरह से सख्त मेहनत कर रही कि सियासी तौर पर बीसी को मसावी मौक़े फराहम किए जा सके। उन्होंने कहा कि बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के लिए ये शर्मनाक है कि वो गरीब अवाम के मसाइल को समझने के लिए बीसी लीडर और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में जनहिता पद यात्रा पर तनकीद करते हुए उसे बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि केसीआर ही थे जिन्होंने 10 साल बीआरएस दौरे हुकूमत में बीसी रिजर्वेशन को 34% से कम करके 22% कर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी एक और धोखेबाज है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा में लाकर बीसी के बेरोजगार लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस और बीजेपी की बीसी के बारे में एक ही पॉलिसी है और वो शुरू से ही सियासी और तहफ़्फ़ुज़ात में धोखा दे रहे। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी लीडर शिव कुमार, मार्केट कमेटी के डायरेक्टर दीगर भी मौजूद थे। ఒక పక్క వీళ్ళు, ఇంకో పక్క ఎంత బాధాకరమనంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ నెల 8న కరీంనగర్లో బీసీ గర్జన పేరు మీద ఒక కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్నారు. అంటే మేము అడుగుతున్నాం, మేము మా రాహుల్ గాంధీ గారు మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం తర్వాత క్లియర్గా మీకు మనుగు పుట్టిందనడంలో మీ రాజకీయ భవిష్యత్ అంతర్గతంలో బీసీలకు మేము దూరం అవుతున్నామనే అనుమానంతో మీ కొత్త తెరపై తీసుకొచ్చిండ్రు. కానీ మేమేమడుగుతున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీని అనుకున్నా మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏమడుగుతున్నాము అంటే మిమ్మల్ని భారతీయ బీసీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ, బీసీలను అట్టడుగు వర్గాలను అనగదొక్కినటువంటి భారత రాష్ట్ర సమితి టీఆర్ఎస్ పార్టీని బొందబెట్టి బోకారం చేసి మీ పార్టీని తునాతునకలం చేసేందుకే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో సిద్ధంగా ఉంది. మీ పార్టీలను నమ్మే పరిస్థితిలో తెలంగాణలో బీసీ నాయకులు, అట్టడుగు వర్గాలు, సామాజిక వర్గాలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు. तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।